Suswagatam. Welcome to Saspandan TCM Academy. I am Vivek Rane, practicing acupuncture from last 40 years. Today, we are here to discuss Losho grade and numerology in acupuncture. You are learning here to how we can correct planetary position, so we can study with Losho grade and numerology, and how we can apply the acupuncture protocol, TCM protocol, 5 elements protocol, and balance method protocol in this Losho grade and numerology. Friends, you never heard about this. So this is the new science which I studied in this subject, Losho grade and numerology in acupuncture. Okay, let us discuss one by one. So this is third session today. ये आज का तीसरा सेशन है. लास्ट टू सेशन हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया. सो हम उसके आगे हम बात कर रहे हैं, आगे डिस्कस कर रहे हैं. अभी लोशो ग्रिड एंड न्यूमरोलॉजी में मैजिक नंबर्स एंड एरोस क्या होते हैं. So what are the magic numbers and arrow in the Losho grid? What you will be learn in this session. So नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोशो ग्रिड और चैलेडियन न्यूमरोलॉजी. ये बेसिक लेवल है. सो इस बार हम लोशो ग्रिड के मैजिक नंबर्स के बारे में बात करेंगे. इसके अलावा हम लोशो ग्रिड के इतिहास और ऐसी दिलचस्प चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें आप जानने के लिए उत्सुक है, जिन्हें आप जानने के लिए आप मेरे साथ है. तो एट लास्ट, आखिरकार ये लोशो ग्रिड क्या है? ये मॉड्यूल 2 का परिचय है और आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है. सो इस मॉड्यूल में हम यह चर्चा करेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं. आर यू ओके विथ हिंदी? आप हिंदी के साथ ओके है क्या इंग्लिश में भी बात करो? आर यू ओके विथ हिंदी? प्लीज रिप्लाई. आर यू ओके विथ हिंदी? ओके, थैंक यू कंचन जी. इंग्लिश. उमा जी, आपको हिंदी आता है ना?
ओके, चलो, हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों में बात करेंगे. So in this module, we will discuss what we are reading and how we are reading it. So first, we will learn about the Losho grade and what is it and its history, where it originated, and how the word adopted. Why do millions and billions of people praise the Losho grade so much? So we will explore this in one session of Model 2. तो आगे आप सीखेंगे कि अपना खुद का लोशो ग्रिड बनाने का सही तरीका क्या है और दूसरों को उनका ग्रिड कैसे बनाने में मदद कर सकते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोशो ग्रिड में शक्ति तीर, दैट इज द एरोज ऑफ स्ट्रेंथ, कैसे जोड़े. अरे, मैंने ये लेना चाहिए व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड की जरूरत है. जस्ट अ मिनट. ओके. तो शक्ति तीर क्या है, एरोज ऑफ स्ट्रेंथ कैसे जोड़े. तो हम योग और याग रोज राजयोग के बारे में भी पढ़े जानेंगे. राजयोग क्या है, जो लोशो ग्रिड में महत्वपूर्ण अवधारणाएं है. लोशो ग्रिड में दो तरह के तीर होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरोज इन लोशो ग्रिड. शक्ति के तीर, इट इज द एरोज ऑफ स्ट्रेंथ. और कमजोरी के तीर, एरोज ऑफ वीकनेस. सो कमजोरी के तीर के बारे में मैं आपको अगले लेवल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम शक्ति के तीर पर ध्यान केंद्रित करेंगे. एरोज ऑफ स्ट्रेंथ क्या है. तो लोशो ग्रिड में कुछ 8 तीर होते, 8 एरोज होते. सो उनमें शामिल है. तो सूर्य संख्या, सूर्य संख्या, सूर्य संख्या क्या है, द नंबर्स ऑफ द प्लैनेट्स इन द सेम साइन एज द सन. देन चंद्र संख्या, मून.
moon number. That is the number of planets in the same sign as the moon. Then Graha Sankhya, planet number. The total numbers of planets in the chart. And that is Dasha Sankhya. Okay? The numbers of planets in the Dasha period. That Dasha means your suffering period. Then Nakshatra Sankhya, star number. The numbers of planets in the same stars as the moon, same nakshatra as the moon. Then Rashi Sankhya, Rashi numbers. The numbers of planet in the same Rashi, that is the zodiac sign. Then Vimshotri Dasha. Vimshotri means the current Vimshotri Dasha period. Then Antardasha. Then current Antardasha period with the Vimshotri Dasha. Then we are studying the column arrow, that is the vertical line arrow. Okay, okay, I will draw this arrow practically. Don't take tension. Okay, then row arrow, that is the horizontal line arrow. Then diagonal arrow, slanting line arrow. So I will explain all 8 arrow in detail. There are the 3 vertical arrow, 3 horizontal arrow, and 2 slanting line arrow. So there are the 8 arrows. Okay, I will explain all 8 arrows in detail with the example so that you can understand them well. By the end, it will be clear to you how these arrows work in the battleship grid. So thank you and enjoy learning. So friends, let's discuss so what is the Losho grid and history of Losho grid. What is the Losho grid and the history of Losho grid? So नमस्कार दोस्तों. सो अब हम चर्चा करेंगे लोशो ग्रिड क्या है, लोशो ग्रिड का इतिहास, यह कहां से आया और यह क्या है. सो चलिए शुरू करते हैं. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक 3x3 का वर्ग. ओके, 3, that is the 3x3 square. This is the 3x3 square. इसमें 3 पंक्तियां है, 3 रो है, 3 कॉलम है. इस तरह यह एक 3x3 का ग्रिड है. इसमें कुल 9 खाने हैं. So contain total 9 cells
There are the 9 cells you can see. So now inside these cells, we have written the numbers from 1 to 9. Okay, you can see the number 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. There are the total 9 numbers are in this grid. So you will learn how these numbers are written in more detail in my upcoming lecture. So let's practice writing them so that you can easily understand this concept. So if it doesn't make sense to you right now, don't worry. By the end of the lecture and this module, you will be able to create it easily. Okay, take the screenshot of this grid and practice. And one thing I forgot to tell you, you take a notebook and pen with you while listening this lecture. So always in this Losho grade and numerology lecture, always you take notebook and pen with you. So you have to uh, do study with the writing. So understand this concept. So this magic square, also known as the magic square, is considered by special. Why? Because no matter how you sum it numbers, so row wise, column wise, or diagonally, the total number is always 15. For example, count here. 4, 9, and 2. Let us count horizontal line. 4, 9, 2 is equal to 15. Okay. Then 3, 5, 7 is equal to 15. 8, 1, 6 is equal to 15. Okay. Now count vertically. 4, 3, 8, 15. 9, 5, 1, 15. 2, 7, 6, 15. Now count diagonally. 2, 5, 8, 15. Then 4, 5, 6, 15. So कहाँ से भी आप उसको काउंट करो, आप हॉरिजॉन्टली करो, आप वर्टिकली करो, आप डायगोनली करो, टोटल सम आपको 15 ही मिलेगा. इसलिए इसको मैजिक ग्रिड बोलते, इसलिए उसको मैजिक स्क्वायर बोलते. सो यह ग्रिड बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भारत में. अगर आप इसे उल्टा कर दे तो यह लक्ष्मी यंत्र जैसा दिखेगा. और ये चीनी संस्कृति में भी इसे पवित्र माना जाता है. क्यों? इसके बारे में हम इसके इतिहास में जानेंगे. अब एक इंटरेस्टिंग बात की ओर ध्यान दीजिए. ऐसा 20th सेंचुरी में जो पैदा हुआ हर व्यक्ति के जन्म वर्ष में कम से कम 1 और 9 होता है. 1980, 1970, 1960, 1950, 1940. ओके, उसमें तो 1 और 9 होता ही होता है.
इसी तरह जो अभी करंट सेंचुरी है, 21वीं सदी में जो पैदा हुआ, हर व्यक्ति के जन्म में 2 और 0, 20 होता ही है। तो यह चीनी न्यूमरोलॉजी से जुड़ा है, जो दोषु ग्रिड से गहर, एकदम डीपली कनेक्टेड है। So if you look closely, so you will notice that the even numbers 2, 4, 6, and 8. See, this is the 2, 4, 6, and 8 are located at the corner of the grid. आप एकदम ध्यान से देखिए, okay? 2, 4, 6, and 8, they are located at the corner of the grid. And 1, 3, 7, and 9. 1, 3, 7, and 9 फॉर्म क्रॉस, ये क्रॉस बनाते। 1, 3, 7 and 9 ये क्रॉस बनाते। 1 and 3 ये क्रॉस हो गया, 7 and 9 ये दूसरा क्रॉस हो गया, ये क्रॉस बनाते। द नंबर 5 इज पोजिशन एग्जैक्टली इन द सेंटर। 5 नंबर ये सेंटर में है, ये सबको बैलेंस करने वाला नंबर है, इसलिए वो सेंटर में। This arrangement ensure that any two numbers surrounding the center add up to the 10. For example, 9 plus 1 is equal to 10. Okay? 5 को छोड़ो बीच में. Okay? 9, 5, 1. ये 5 को छोड़ो. 9 plus 1 is equal to 10. Okay? अभी 3 plus 7 is equal to 10. Okay? 4 plus 6 is equal to 10. 5 को छोड़ो. 8 plus 2 is equal to 10. Okay? So, when the center number 5 is added to this pair, the magic sum become 15. अगर सेंटर नंबर के को ऐड किया जाएगा तो ये सब 15 बन जाता है। The Losho grid is also connected to the Bagua, I Ching Bagua. So, do you heard in the acupuncture, I Ching Bagua? This is the very advanced knowledge in the acupuncture. So this Losho grid is also connected to the I Ching Bagua, so which is used in the Chinese Feng Shui also. Bagua represent the direction of the element. So we will discuss in the further in upcoming lecture. Okay, so in Bagua there are the 8 trigram, 64 hexagram. Okay, we will discuss. अभी ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है जिनका जीवन दोषो ग्रेड की सभी संख्या से पूरी तरह मेल खाता है। ऐसा ये सब नंबर जिसके डेट ऑफ बर्थ में ये सब नंबर, सब ये जो ये सब कॉलम है, ये जो 9 कॉलम है, ये सब के सब कॉलम भर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जो ऐसा व्यक्ति है जो ये सारे कॉलम भर देता है अपने डेट ऑफ बर्थ से, ये बहुत लकी ये जो पर्सन होता है बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और दूसरी दूसरी ओर ऐसा असंभव है कि किसी के ग्रिड में कोई संख्या ही ना हो। जो ये अर्थ प्लैनेट में जिसने जन्म लिया है उसका तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ ईयर तो है ही है ना। कोई ईयर में पैदा है हुआ है, कोई
कोई मंथ में पैदा हुआ है, कोई डेट डे में पैदा हो, तो ये डे, मंथ और ईयर तो रहेगा, तो ये लोशो ग्रेड में वो नंबर आएगा। ऐसा बहुत असंभव है, क्योंकि हर कोई लोशो ग्रेड के कुछ प्रभाव में पैदा होता है। सो लोशो ग्रेड के इतिहास की ओर बढ़ते हैं। लगभग 4000 साल पहले, 650 ईस्वी सन पूर्व के आसपास, चीन के एक महान सम्राट थे। चीन में एक महान सम्राट होकर गया, उनका नाम था यू यू द ग्रेट। यू द ग्रेट। ओके। और चीन में एक येलो रिवर है, येलो नदी है, वो पीली नदी के पास काम कर रहे थे, जहां वे बाढ़ को, तब वो बहुत बाढ़ आ रहा था चीन में, जहां वो बाढ़ को नियंत्रित करने के समाधान ढूंढ रहे थे। ये एक स्टोरी है। ओके। तो एक दिन उन्होंने एक कछुओं के खाल पर, उसके जो कछुओं का जो ऊपर का जो ये है, सेल है, हाँ, तो उन्होंने एक कछुए के खाल पर एक रहस्यमय पैटर्न देखा। ये ऐसा रहस्यमय पैटर्न देखा। तो चीनी संस्कृति में कछुआ को शुभ माना जाता है। ओके। वेरी लकी माना जाता है। ओके। इस कछुए के खाल पर वो जो सम्राट है, जो यू सम्राट है, उसने 3 बाय 3 का ग्रिड देखा, जिसमें संख्याएं जैसे पैटर्न थे। इस पैटर्न को संख्या के रूप में समझा गया, और जब उन्हें जोड़ा गया तो कुल हमेशा 15 आया। ये देखो, वो इसलिए वो मैजिक स्क्वायर है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में भी 15 दिन का अंतर होता है। तो इस खोज ने चीनी ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की नींव बनाई, जो फाउंडेशन बनाई। लोशो ग्रिड को फेंग शुई और ज्योतिष जैसे प्राचीन और साइंस का मूल माना जाता है। लोशो ग्रिड के बारे में और भी कहानियां हैं, लेकिन सम्राट यू और कछुओं की कहानी सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। So now let us discuss how to make your own and others लोशो ग्रिड। आप अपना और दूसरे का लोशो ग्रिड कैसे बना सकते हैं? हाउ टू मेक, कैसे बना सकते हैं? ये देखो, ऐसा स्क्वायर है। पहला आप नोटबुक में, आपके पास नोटबुक है अभी? प्लीज रिप्लाई ऑन द chat box. Open your video and show me your notebook and pen. Open your video. Show me your notebook and pen. और ऐसा स्क्वायर बनाओ, 3 बाय 3 का स्क्वायर बनाओ। ओके, 3 बाय 3 का स्क्वायर बनाओ। हाँ उमा जी, 3 बाय 3 का स्क्वायर बनाओ। कंचन जी,
ये क्लास इंटरैक्टिव होना चाहिए। 3 बाय 3 का स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर बना के मुझे दिखाइए। ओके, ओके, ओके। हाँ, ओके, ओके उमा जी, वेरी गुड। जितने भी सब लोग हैं 3 बाय 3 का स्क्वायर बनाइए। सर ये देखो। हाँ, ओके, ओके, ओके। कांचन जी, आपने बनाया, स्क्वायर बनाया। ओके। अभी मैं मान के चल रहा हूँ आप सब लोग ने 3 बाय 3 का स्क्वायर बनाया। सो नमस्कार। इस सत्र का विषय है कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए लोशो ग्रिड कैसे बना सकते हैं। तो कृपया ध्यान दे के आ, दे दो, क्योंकि इस सेशन में आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होगा। मैं आपको बता दूंगा कब ऐसा करना है, लेकिन अभी चलिए शुरुआत करते हैं। अभी पहला कदम तो वर्ग, अब वर्ग बनाए, अपने स्क्वायर बनाया। तो सबसे पहले आपको वर्ग बनाना है। वर्ग का मतलब है कि अभी उसकी सभी भुजाएं बराबर हो। यह पूरी तरह से सटीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह ऐसा दिखना चाहिए कि एक यह एक अच्छा स्क्वायर है। जब आपने वर्ग बना लिया तो इसमें 3 कॉलम, ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में विभाजित करें। अब आपको 9 ऐसे छोटे छोटे बॉक्स या खाने दिखाई देंगे। नाउ सेकंड स्टेप, ओके, फिल इन द नंबर। अभी आपको इसमें नंबर भरना है। fill in the numbers. Now you will fill in the numbers in this box. So this need to be done in specific order. That's how write the first number 1 in the box between the bottom row. Okay, 1 नंबर वो bottom row में आएगा। Try to move up and the right, but since there is a no box there, go to the bottom left corner and write the 2. Then move up to the right again and 3. अभी आपको मैं एक स्क्वायर दिखाता हूँ। वो स्क्वायर में आपको नंबर आपको फिलअप करना है। हम्म। अभी ये नंबर जैसे 9 कॉलम है, ये 9 कॉलम में
ये सीक्वेंस से ये नंबर आप भरते जाइए। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं। ये स्क्वायर का स्क्रीनशॉट ले लो और आप बनाने शुरू करो। और बना के होने के बाद मुझे दिखाइए। कंचन जी, हो गया आपका? बना के हो गया? हाँ, वेरी गुड उमा जी। आपका पूरा कॉलम नहीं दिख रहा है उमा जी। पूरा कर कॉलम नहीं, और कैमरा बराबर एडजस्ट कर रहा। हाँ, ओके ओके। ओके, संजीता कदम, आपका कॉलम दिखाइए। संजीता कदम। ओके, शसती बेगम, आपका कॉलम दिखाइए। ओके ओके ओके। अमीषा गुप्ता, क्या हुआ? अभी थोड़ा लिखना बाकी है, हाँ ड्रॉ ठीक है। करना बाकी। अच्छा ठीक है ठीक है। देखना, हाँ, वो पिक्चर फिर से दिखाऊं ना सर? पिक्चर फिर से दिखाओ। आपको हाँ जी। आपने आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया लो। सर। हाँ अच्छा, अभी फिर से डालो, मैं ले लेती हूँ। हाँ, ये देखो दिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके। हाँ, ओके ओके। हो गया सर। हाँ, दिखाइए। कांचन जी, आपका अभी दिखाइए स्क्वायर। अनम्यूट कीजिए तो आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। कांचन जी, बात कीजिए आप तो स्क्रीन पे आ जाएंगे। हाँ सर। हाँ, दिखाइए मुझे स्क्वायर, दिखाइए नंबर के साथ। सर आया। नहीं दिख रहा है। आपका नोटबुक नहीं दिख रहा है।
ओके ओके ओके, वेरी गुड। संजीता कदम, आपका दिखाइए नोटबुक। संजीता कदम, आपका नोटबुक दिखाइए। आपने क्या किया? अनम्यूट कीजिए। संजीता कदम, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हाँ हाँ, दिखाइए। एक मिनिट। हाँ, नोटबुक हे दिखाइए। बघा. ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके. ओके, अमीषा जी, हाँ, वेरी गुड। अनम्यूट कीजिए अमीषा जी, अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए, तो आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके। ओके, चलो आगे बढ़ते। तो ये अभी सबको समझ में आ गया, आई थिंक। ओके ओके, आ गया समझ में। लोशो ग्रिड कैसे बनाना है, पहला जो लोशो ग्रिड कैसे बनाना है ये आपको समझ गया। यस सर. ओके ओके, यस सर। तो वेलकम। तो मुझे विश्वास है कि आपने लोशो ग्रिड को अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है, और अब इसके एक मिनट, हाँ। ओके, तो मुझे अब, और ये ग्रिड है ना, आप बार बार ट्राई कीजिए, बार बार बना लीजिए कि एकदम फिट हो जाए। आप कभी भी नींद से भी जागेंगे तो आप ये ग्रिड बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है और अभी भी सुन रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप आ, चरण दर चरण इसका साथ ले। ओके, इसलिए हमने, तो ये कोर्स को मैंने ऐसे बनाया है जिसे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके। अब चलिए, अब एक उदाहरण लेते हैं। ओके, अभी मैं व्हाइट बोर्ड की मदद लेता हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। नरेंद्र मोदी, ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, तो जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ क्या है, 17 सितंबर 1950। ओके, और वे गुजरात के
वडनगर में पैदा हुए हैं, जो पहले बॉम्बे और मुंबई राज्य का हिस्सा था। तो वह उनकी जन्मतिथि संदर्भ के लिए लिखी गई है। तो हम एक ग्रिड बनाएंगे, 200 ग्रिड। पहला एग्जाम्पल के लिए 200 ग्रिड बनाएंगे। ओके, तो पहला हम पूरा 200 ग्रिड बनाएंगे। एक इधर आता है, दो इधर आता है, तीन इधर आता है, चार इधर आता है, पांच इधर आता है, छह इधर आता है, सात इधर आता है, आठ इधर आता है, और नौ इधर आता है। ओके, तो ये लोशो ग्रिड हो गया ओरिजिनल। अभी हम नरेंद्र मोदी का लोशो ग्रिड बनाएंगे। नरेंद्र मोदी का लोशो ग्रिड बनाएंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर 1950 ये नरेंद्र मोदी का हम लोशो ग्रिड बनाते हैं। एक एग्जाम्पल लोशो ग्रिड, और बाद में उसका जो प्रिडिक्शन है वो हम बाद में करेंगे। लोशो ग्रिड कैसा बनाना है ये हम पहले स्टडी करेंगे। तो उनका जो जन्मतिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 है। 17 का एक इधर आ गया और 7 इधर आ गया। ओके, 17 सितंबर। ओके, जीरो का कुछ मतलब नहीं है। ओके, बाद में 9, 9 ऊपर आ गया। ओके, बाद में 1, 1950 का 1 वापस इधर आ गया, वापस 9 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, और जीरो का कुछ मतलब नहीं है। ओके, जीरो जीरो हैव नो वैल्यू। सो मैंने आपकी समझ के लिए यह ग्रिड यहाँ रखा है। अगर आपने पहले ही 10 बार अभ्यास किए, पूरे किए, तो आपको अब तक ये लोशो ग्रिड कैसे बनाना है यह पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अभी भी मुश्किल महसूस हो रहा है, या अगर आपने अभ्यास नहीं किया है, तो ऐसा करें, जब जब भी आप किसी की जन्म तिथि ले, तो हमेशा साथ में एक लोशो ग्रिड बनाए और देखिए कि हर नंबर कहाँ आता है। इसलिए मैंने एक लोशो ग्रिड बना लिया आपके लिए, और ये है नरेंद्र मोदी का लोशो ग्रिड। जब सभी नंबर जगह पर आ जाते हैं, तो बेसिक लोशो ग्रिड पूरा हो जाता है। अभी के लिए हम सिर्फ जन्म तारीख का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में आप सीखेंगे कि ग्रिड में और और नंबर कैसे जोड़ते हैं। और नंबर भी है, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो अगर आपने पहले से ही एक्सरसाइज खत्म किया है, कर लिया है, तो ये सेशन को फिर से आप सुने जब मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, और अपने जो आंसर ये सब चेक करें। जब आपको यकीन हो जाए, तो हम और आगे बढ़ेंगे, एडवांस स्टेप को समझेंगे। तो लेट मेक ग्रिड ऑन मोर टू डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए
जल्दी से देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो अभी ये जो लो शुगर ये पूरा नहीं है, इसमें ड्राइवर नंबर भी लिखना है, इसमें कंडक्टर नंबर भी लिखना है। ये पूरा नहीं है, इसमें और नंबर्स ऐड होंगे जो आप आगे देखेंगे, आगे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सीखा कि लो शुगर कैसे बनाना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ का बनाइए, अपने रिश्तेदारों का बनाइए, अपने घर में जितने भी लोग रहते, आपके आपके हस्बैंड है, आपके किड्स है, उनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए और उनका लोशो ग्रेड बनाइए। ऐसा करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अभी और एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। आप बना रहे हैं ना, आप खुद के नोटबुक पे? आर यू प्रैक्टिसिंग इन योर नोटबुक? ओके। और एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। 3 नवंबर 1922। ये किसका भी है, एक एक अंदाज से मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया। ओके। सो पहला हम 200 ग्रिड बनाते हैं। ताकि आपको पता चले कौन सा नंबर कौन सा खाने में आ जाएगा। ओके। ये नॉर्मल 200 ग्रिड, इधर एक आया, इधर 2 आया, इधर 3 आया, इधर 4 आया, इधर 5 आया, इधर 6 आया, इधर 7 आया, इधर 8 आया और इधर 9 आया। ओके। अभी ये डेट ऑफ बर्थ का लोशो ग्रेड हम आगे इधर बनाएंगे। अभी 3 नंबर इधर आ गया। ओके। बाद में मंथ के घर में जाएंगे। मंथ कौन सा है? नवंबर। नवंबर मीन्स 11। 11 का एक दो, एक और एक। ओके। 11 इधर आया। वापस 1922। सो 19 का एक हमने लिया, इधर लिखा। 9 नंबर लिया, इधर लिखा। 2 नंबर लिया, इधर लिखा। और 2 नंबर लिया, इधर लिखा। ओके। तो ये हो गया। जो आदमी, जो पर्सन तो स्क्रीन इस, फुल स्क्रीन नहीं दिखता सर। हाँ, फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। कौन सा मैजिक है? सेकंड सेकंड स्क्वायर सर, सिर्फ 9 और 111 दिख रहा है, वो 22 नहीं दिख रहा है। फुल हाँ स्क्रीन, हाँ उधर उधर नहीं दिख रहा है सर, हमारा हाँ राइट साइड। हाँ हाँ, ये नहीं दिख रहा है क्या? ये देखो, हाँ हाँ, 3/11/1922 अभी दिखा। स्क्वायर 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 नहीं दिख रहा सर। ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है। नहीं, पर्सनल स्क्वायर, लेफ्ट का, लेफ्ट वाला। डेट वाला का लोशु का दिख रहा है सर। हाँ हाँ। वो और एग्जाम्पल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लास्ट हाँ, स्क्वायर नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल स्क्वायर नहीं दिख रहा है। हाँ सर। ओके। हाँ, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। चलो वापस हम उसको ये करेंगे। हाँ। हाँ सर। हम्म। अभी ये स्क्वायर दिख रहा है।
हाँ दिख रहे, फुल स्क्वायर दिख रहे। हाँ, अभी ये स्क्वायर हम एग्जाम्पल स्क्वायर बनाएंगे उसको पहला। ओके, 1, एक इधर आया, बाद में 2 इधर आया, बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये एग्जाम्पल हो गया। अभी हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं 3/11/1922। ओके। सर उधर मत जाइए सर, वो नहीं दिख रहा है सर स्क्रीन पे, इधर आइए। हाँ हाँ हाँ, हाँ इधर। उधर, उधर हाँ डालिए, उधर डालिए, दिख रहा है। हाँ, 3/11/1922। अभी दिख रहा है ना? हाँ स्क्वायर भी इधर ही डालिए, हाँ गुड, अब दिख रहा है सर। हाँ, अभी दूसरा स्क्वायर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ, अभी हमने 3 लिया, अभी 3 ये घर में, तो इधर हम 3 लिखा। ओके, वापस 1 लिया, ये 1 इधर है, इधर 1 और 1 इधर लिखा। वापस 1 है, वो भी इधर लिखा। ओके, मंथ हो गया। अभी ईयर में जाएंगे। ईयर में 1922। ओके, 1920 में ये जो 1 है वो लिया, वापस इधर लिखा। ओके, बाद में 9 लिया, 9 को इधर लिखा। बाद में 2 लिया, 2 को इधर लिखा। बाद में 2 लिया, 2 को इधर लिखा। अभी समझा? अभी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। ओके ओके। अभी हम और एक डेट ऑफ बर्थ हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल ग्रिड लिखेंगे। एग्जाम्पल ग्रिड पहला। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, हमें अभी डेट ऑफ बर्थ का करना है 29 दिसंबर 2005। इस ये डेट ऑफ बर्थ है। ये डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ये मंथ ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ। ओके, सो हम वापस एक ग्रिड बनाएंगे, उसका खाली घर बनेंगे, वापस उसको भरेंगे। ओके, अभी ये 2, पहला 2 लिया, इधर आया। बाद में 9, 9 ये इधर आया। ओके, ये बर्थ डेट कंप्लीट हो गया। अभी बर्थ मंथ। ओके, बर्थ मंथ का दिसंबर है, यानी 12। 12 का 1 इधर आया, 2 वापस इधर आया। बाद में अभी ईयर में जाएंगे 2005। 2000 का 5 का 2 लिया, वो इधर आया, और 5 लिया, वो इधर आया। ओके, अभी ये जो डेट ऑफ बर्थ है 29/12/2005, उसका ये ग्रिड बन गया। ओके, तो एक व्यक्ति है जिसका जन्म 3 नवंबर 1922 को हुआ, उसका ग्रिड बना, पहले ग्रिड बनाया। अभी ये ग्रिड बनाया जिसका नंबर 29 दिसंबर 2005 को हुआ, तो उसका ये ग्रिड बनाया है। ओके, अभी
आप समझ गए ना कैसे कैसे ग्रिड बना सकते हैं? आपको हाँ सर, ग्रिड, हाँ हाँ सर, ग्रिड, हाँ सर। हाँ ग्रिड बनाना आप ही बोल रहे हैं, और दूसरे कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। तो डेट ऑफ बर्थ को ही कंसिडर करते हुए अभी कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं डालना है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर करें। कोई अभी ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, हम आगे सीखेंगे। पूरी जन्म तारीख की तिथि, दिन, महीना और वर्ष। तो इस बेसिस पर लोशो ग्रिड बनाए। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जब आपने यह काम पूरा कर दिया हो तो मैं आगे चलूंगा। तो आपने ये सब आपके नोटबुक में, अभी आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। आपका और आपके हस्बैंड का, आपके किड्स का, आपके बच्चों का, आपके बेटा का, आपके बेटी का लोशो ग्रिड बनाइए और मुझे दिखाइए। हाँ, सब लोग वीडियो ऑन कीजिए, सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। जितने भी लोग हैं सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। सब लोग वीडियो ऑन कीजिए और मुझे दिखाइए। आपका दिखाइए, आपके बेटे का दिखाइए, आपके हस्बैंड का दिखाइए, आपके सास का, आपके ससुर का, जितने भी आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं सबका बनाइए। सबका ग्रिड बनाइए। सर अभी बनाना है सबका? हाँ अभी बनाओ, अभी बनाओ, नोटबुक पे बनाओ। पर कितना सबके डेट ऑफ बर्थ थोड़ी ध्यान है। हाँ, जिसका भी ध्यान है और जिसका भी आपको याद आता है डेट ऑफ बर्थ, हाँ। हाँ सबका बनाओ। और बाद में ये सेशन के बाद सबको पूछ पूछ कर बनाओ। आपके दोस्त को फोन करो, आपके ओके। रिश्तेदार को फोन करो, डेट ऑफ बर्थ यस क्या यस है। सर। हाँ आपका, ठीक ठीक ठीक। हाँ। तीन ही वीडियो ऑन दिख रहे हैं मुझे। सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। सर ये देखिए मैंने बनाया। तो ये किसका किसका है? मेरा है, बेटे का है, उसके बाद ग्रैंड डॉटर का, फिर बड़े बेटे का, फिर बेटी का। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अनुसया जी, आपका दिखाइए नोटबुक। सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। अब बना। हाँ अमीषा जी, हाँ दिखाइए। हाँ हाँ जी सर, सर बना रही हूँ अभी। हाँ 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 हाँ। मनोज बना कुमार रही आपने हूँ। दिखाया। मनोज कुमार आप अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट कीजिए, दिखाइए। आप बात कीजिए तो आप स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। अनुसया, सर हो गया, बना दिया। हाँ तो दिखाइए, मुझे दिख नहीं रहा है स्क्रीन के सामने। बात कीजिए, बात कीजिए तो स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। हाँ सर सर सर, बना दिया हाँ ये। हाँ संपर्क संकेत का एक था हाँ 86। हाँ एक ठीक है साथ ठीक है। है। संजीता जी, संजीता कदम, हाँ हाँ, बोला सर। हाँ आपका नोटबुक दिखाइए। एक मिनट। हाँ, हे बघ। हाँ अब किसका किसका बनाया आपने?
माझा आहे, हसबंडचा आहे आणि 2 मुलांचा आहे. ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. और कौन बाकी है? हाँ अभी सब लोग कैसे वीडियो बोला ऑन कीजिए, सब लोग वीडियो ऑन कीजिए. 1 9 8 7 3 8 सर हस्बैंड का और बेटे का. हाँ, दिखाइए दिखाइए. और जलपा का 12 1 अरे चले गए 3 बता दो ना, बहुत हो गई है तो हर देखा जाए वो लिस्ट हो जाए. ओके सर. हाँ 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 हेलो सर. हेलो सर. हाँ, बोलो बोलो बोलो. हाँ अमीषा जी बोलिए. हाँ मैंने अपने हस्बैंड का, बेटे का और बेटी हाँ का हाँ, बनाया. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हाँ, उमा जी आपका नोटबुक दिखाइए. ये ये पहले ही दिन दूसरा अनम्यूट घंटा कीजिए, कितना कॉपी सब पूरा अनम्यूट करके कीजिए, खुद मालूम को है. अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट डॉक्टर के कीजिए, बाद इसके बाद अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए. उमा जी अनम्यूट कीजिए खुद को. हाँ, बात कीजिए. हाँ सर. हाँ हाँ, किसका किसका है? मेरा अभी बनाई हूँ. हाँ, हाँ, बेटे का और एक बेटे का और बना रही हूँ. अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सुमति पिल्लई, सुमति, सुमति जी, सुमति जी, आर यू देयर? हाँ, आपने बनाया, ग्रिड बनाया, किसका किसका बनाया? खुद को अनम्यूट कीजिए. हाँ, बात कीजिए बात कीजिए बात कीजिए, दिख नहीं रहे. सर मेरा बनाया, बच्चे का बनाया, हस्बैंड का बनाया, भाई का बनाया, मम्मी का बनाया और 2-3 जन का बना रही हूँ. अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. देखिए टिपिकल. जोरदार. शासक, शासक बेगम, शासक बेगम आपने बनाया क्या? शासक बेगम. हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. बनाएंगे. किसका 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 है? मेरे बेटे लोग का करी हूँ सर. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. हम्म. मैं तो मूवी बन गए पहुंच रही. हाँ, तो आप आज का ये आपके लिए ये होमवर्क है. बोला हाँ, ये उभरा नहीं पानी से यहीं बैठे. आज के लिए सभी के लिए ये होमवर्क है. तो हम कल कल आप कल वापस सेशन होगा 11 बजे, और 8 बजे भी सेशन है. तो एरोज ऑफ स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे. एरोज ऑफ, वो जो एरोज है वो कैसे एरोज है मैं आपको बताता हूँ, तो आपका दो जो सेकंड. इंटरेस्ट और बढ़ेगा. ताजा हो गया मेरा. भूल जाते हैं ना अपना, रिवाइज नहीं करते थे. हाँ हाँ, पहले करा था बहुत. हाँ अमीषा जी अभी म्यूट करो खुद को. हाँ जी हाँ जी. हाँ, खुद यस को म्यूट करो. अभी म्यूट है. ये जो एरो है, ये जो हॉरिजॉन्टल एरो, ये जो हाँ 492 ये एरो बनता है. 357 ये एरो बनता है. 816 ये एरो बनता है.
ये एरो का एक मीनिंग है, इसका स्ट्रेंथ रहता है। अगर ये 4.9 492 आता है तो जिसके डेट ऑफ बर्थ में ये 492 आता है उसके लिए क्या क्या उसके भाग्य में रहता है। या वर्टिकल देखो 438, ये अगर किसके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा होता है, या वर्टिकली 951 ये ये आ रहा होता है, या 276 ये आ रहा होता है। हाँ, तो हर एक एरो का एक मतलब है, एक मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, तो हम ये अगले सेशन में जानेंगे। हाँ, और ये उसका ये जो गोल्डन योग है, सिल्वर योग है, ये जो 258 ये सिल्वर योग है, 456 ये गोल्डन योग है। तो जिसके डेट ऑफ बर्थ में ये योग आता है, हाँ, तो उसका मतलब क्या है, उसके उसके भाग्य में क्या रहता है। हाँ, तो ये हम सर डिस्कस पढ़े हुए करेंगे। हैं सब। हाँ, अगर अगर ये योग नहीं बनता है, ये विश्व में कौन सा भी नंबर एब्सेंट है, तो वो नंबर का जो प्रभाव है हम कैसे ला सकते हैं एक्यूपंक्चर से। हाँ, तो ये एक्यूपंक्चर हाँ, तो ये हम ये ये कोर्स नवाज में है। हम डिस्कस करेंगे ताकि उसका डेस्टिनी और चमक सके। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए मुझे लगता है बहुत हो गया। हम अगर ज्यादा मैं आपको नॉलेज दूं तो आपके सर के ऊपर से भी जा सकता है, तो थोड़ा थोड़ा ही हम पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ हाँ, ओके। और मेरा एक कोर्स शुरू होने वाला है, टंग डायग्नोसिस। अब टंग देख के उसका पैटर्न कैसे समझना है। संजीता कदम, संजीता कदम, आप है क्या, गए? संजीता कदम, आर यू देयर? नहीं, गए गए, लेफ्ट हो गए। Yes, sir. I आए, me. हाँ हाँ। तर टंग Oh, डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस सुरू करतोय कधीपासून 22 सर? 22 सप्टेंबर पासून। हा, मी आता या ग्रुपमध्ये ऍड व्हा, मी ग्रुपची लिंक देतोय तुम्हाला। ओके, Okay. आप लिंक दे रहा हूँ टंग डायग्नोसिस के ग्रुप का, आप ज्वाइन हो जाइए वो ग्रुप में। ये देखो चार्ट बॉक्स में आ गया लिंक, वो लिंक में आप ज्वाइन हो जाइए। टंग डायग्नोसिस का आप किसका भी टंग देखे, किसका भी जबान देख के आप उसको क्या हुआ है, उसका पैटर्न क्या है, वो आप समझ लेंगे। ओके, और ये टोटल 5 फ्री सेशन रहेंगे ये लोशोगिड और न्यूमरोलॉजी के कोर्स में। हाँ, तो उसके बाद ये कोर्स बस पेड पार्टिसिपेंट के ही खुला खुला रहेगा। 5 सेशन फ्री लाइफ। हाँ, 5 सेशन फ्री है, ये तीसरा सेशन है, और 2 सेशन आपको फ्री मिलेंगे। उसके बाद जिन्होंने जिन्होंने ये एनरोल किया है उनके लिए ही ये कोर्स मिलेगा। हो तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए और इसके बारे में आप अच्छी तरह नॉलेज लीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो तीसरा सेशन में तो पहली बार देख रही हूँ, सब चला गया। ओके, एंडिंग द सेशन।